बेसिकली एक चिंगारी से आग लगती है। I'm a middle class person. ऐसा कोई मेरे पीछे कोई बड़ा सरनेम नहीं है। कि वक्त लगता है लेकिन हो जाता है। तो मुझ पे हंसने लगा कि क्यों मेरी टांग खींच रहे हो। आई एम ऑलरेडी इन अ डीप शेप। मेरे दोस्तों, when we talk about man, we also talk about God man in the same context because वो दोनों है जो चीज़ ये एक साथ parallelly चलते हैं in whatever context that we talk about. यहाँ पे एक और कहानी है which is about man and God man, but then they are pitted off against each other in whatever way, in how, in what exactly ways we are going to be finding out in बंदा. मेरे साथ अभी यहाँ पे टीम मौजूद है. First of all, sir, welcome on the Bollywood Talk Show on IWM Buzz. It's a pleasure. Sir, सबसे पहले आप दोनों का स्पेक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बंदा का कोलैबोरेशन तो है मनोज सर के साथ, बट ये अलावा स्पेक्टेकल का भी क्या कोलैबोरेशन, क्या सीन है? मजा आ रहा है मुझे देख के। फिल्म इज अ बिग स्पेक्टेकल, सो या और हम लोग एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि वो ट्विन ब्रदर्स, ट्विनिंग, या दैट वे। सर, व्हेनेवर आई एम चैटिंग विथ यू, एक पॉजिटिव एनर्जी तो रहता ही है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस का, बट एक नर्वस एनर्जी भी आ जाता है आपके पर्सनालिटी को देख के। Last time also, I think I told you the same thing. I saw the trailer. One of the fortunate ones to see it before it comes out. The way it shows you fighting for justice is not something that कि हम लोग ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा मनोज सर, but still वो righteousness जो है character का, that you're bringing to the table in terms of the layers जो आप कर रहे हो performance में. Despite doing stuff in the past as well, similar stuff. As an actor, आप सबको मालूम है कि मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे एक्टर है. सबको मालूम है कि मनोज बाजपेयी जब भी आते हैं एकदम सबको खा जाते हैं in terms of acting. Still, how do you ensure कि यार कुछ अलग करूँ in every way, because that's the most difficult thing. But to explain, let me explain. This is a story or the character I have never been part of. Okay, so this is not something that I have done earlier. This is a man from a different profession, from a very different family. His upbringing has been different. The atmosphere and the environment he comes from is completely away from all the characters that I have done till now. And his quirks, his likes, his dislikes, why he takes up a case, of a minor girl, and why he decides to really take on the power that be. Where he knowingly actually he knows that there is a danger ahead, and still he found a strength in him to go ahead with this case and really go till the end. I don't remember any of my film in my filmography where I have played this kind of a role. Yeah, you haven't. Not as lawyer. So, not as a lawyer, but also here's the thing: the one line that you said that he's not fighting the system. He's using the system to work with him, for him. And these 5 years of this case, the system worked together as a whole. If the cops had not filed the FIRs properly, if the entire legal system did not come together properly, if the entire judiciary and the government weren't all together, the system, he made the system work. That's what he did. Right. So, so it is not against the system. It is definitely against a person who has misused the trust of a few vulnerable ones. आप दोनों को के पास आने के पहले एक और चीज, ऐसा कहा जाता है कि it just takes one man to kind of bring in that revolution, वो start करने के लिए, बाकी सब फिर अपने आप people start following. So do you feel कि in today's time as well, जहाँ पे social media exposure इतना ज़्यादा है, या फिर कुछ भी हो जाए, एक perception बहुत जल्दी build हो जाता है audience के या लोगों के दिमाग में कि हमने कोई एक वीडियो देख लिया Twitter पे या Instagram पे, तो तभी एक perception बन जाता है. Sometimes we don't even cross check the other side कि उसका क्या है, हकीकत क्या है, reality क्या है, we don't even cross check. In today's time, do you think कि इतना जब यहाँ पे over exposure to information जहाँ पे है, you actually think कि even in today's time one man can actually start a revolution? आपको क्या लगता है? It always starts with one person. And that one person gets that kind of a motivation from inside. And it's his conscience. It's his conscience from where he takes the courage from. And then he starts his journey. And you go back in the history, in any country,
you'll always find that one person and the courage of that one man. In the beginning, he was always alone. फिर आगे बढ़ते हैं लोग. But कारवां बनता गया. आपने सुना है ना? जी. लोग आते गए, कारवां बनता गया. ये हमेशा ऐसे ही होता है. किसी के बारे में भी आप बात करो, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करो, आप उतना ही नहीं, भगत सिंह के बारे में बात करो. 23 साल की उम्र में उनके साथ भी लोग जुड़ते चले गए थे, जो उसके मेथड में बिलीव करते थे. फिर नेल्सन मंडेला की बात करो, आप मदर टेरेसा की बात करो, आप बाहर चाहे कम्युनिस्ट कंट्री, it only took for one middle class person, and his name was Lenin. Okay, he started revolution in Russia, USSR. So it's always about that one person. Okay, whether it's the French Revolution, I mean, go back anywhere in the world, कुछ भी हो. Jayaprakash Narayan for that matter. It comes down to physics. It's like basically एक चिंगारी से आग लगती है. So what needs a spark. What Solanki ji has done, if you meet him, पता ही नहीं चलेगा कि इस आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया. वो सिर्फ वो समोसे की और रसगुल्ले का रसमलाई की बातें करते हैं. तो सोलंकी साहब जो हैं, उनको पता नहीं है कि उन्होंने न सिर्फ ये केस लड़ा और जीता, बल्कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया. मोस्ट इम्पोर्टेंट. आज माइनर के साथ में अगर आप किसी ने भी दुर्व्यवहार किया, तो ये मान के चलिए ये केस हमेशा रेफर होगा और उसको सजा हो जाएगी. सोलंकी साहब ने इतना बड़ा काम किया है. पॉस्को को पूरे तरीके से उन्होंने ऑपरेशनल किया, पॉस्को एक्ट को जी, जो इतना बड़ा एक्ट है जो निर्भया कांड के बाद बना था. और इस आदमी ने पॉस्को पे पूरी मास्टरी कर ली थी. जोधपुर में बैठा हुआ इसने सारे बड़े बड़े लॉयर्स को डिफीट किया था एक ही पैटर्न से. फैंटास्टिक. सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, of course everybody knows about Family Man and your association with him that way in terms of the creative aspect, but एक और फिल्म जो शायद आपने लिखा था, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ उस फिल्म का, that is ज़मीन जी. तो I don't know why at that point of time when it came out it didn't get the due love जो शायद उसको मिलना चाहिए था, but बाद में when it started streaming on TV and all, जब wider audience को पहुंचा वो कहानी, it was like मतलब wildfire in that way in terms of reception. मैं कभी भी अभी भी अगर टीवी चलता है, मैं ज़मीन चलता है तो I play no matter how many times I've seen. But उस टाइम पे it's your hard work that has come out. अभी तो चलो बंदा के बारे में बात करेंगे, but उस टाइम पे when it came out, बाद में जब लोगों को पसंद आया वो चीज, डिड यू फील कि अरे यार उस टाइम पे लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगा, मैंने एफर्ट तो सेम डाला था, कहानी भी सेम है, मूवी भी सेम है, तब क्यों नहीं अच्छा लगा, बाद में कैसे लगा अच्छा लोगों को? हाउ डिड यू टेक दैट? हर चीज की किस्मत और कुंडली होती है मेरे ख्याल से. वक्त आने पे एंड थिंक इज आप पेड़ आज बीज डालते हो ना, उसका रिजल्ट कभी बाद में आता है. मेरी फिल्म 1971 जी, जब वो फिल्म आई तो उसी समय 10 फिल्म रिलीज हुई और वायकॉम की पहली एक्विजिशन थी 1971. हाँ. उन्होंने भी ढंग से जो है उसको मार्केटिंग नहीं कर पाए थे और वो फिल्म आई गई चली गई. मेरा डायरेक्टर जो है डिप्रेशन में चला गया और उसको जब मैंने फोन किया कि भाई तू इसको नेशनल अवार्ड में सबमिट कर दे, तो मुझ पे हंसने लगा कि क्यों मेरी टांग खींच रहे हो, आई एम ऑलरेडी इन अ डीप शेप. तो उसको जबरदस्ती जो है फ्लाइट से एक आदमी को भिजवा करके जो है वहां दिल्ली में जाकर सबमिट करवाया और उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिलते हैं. बेस्ट हिंदी फिल्म ऑफ दैट ईयर, जो कि फिल्म मतलब 4 दिन में नहीं चली वहां पे, और बेस्ट साउंड कुणाल को मिला जी. और पैंडेमिक के समय में मैं उत्तराखंड में फंसा हुआ हूँ एंड इट बिकेम अ वायरल. उसका किसी ने ट्वीट किया, 2 या 3 ट्वीट आए कि हमें आपकी 1971 हमने टीवी पे देखा था, बहुत अच्छी लगी थी, बड़ा आप लोग जो है YouTube पे क्यों नहीं डालते हो. तो मैंने अमृत सागर को टैग करके कोट करके छोड़ दिया. अमृत सागर ने मुझे फोन किया कि यार डार्लिंग इसको ना डाल देते हैं YouTube पे, क्या कहता है. मैंने कहा ऐसे मत डाल, तू एक क्रिएटिव बना 2-3 और तू मुझे भेज और मैं इसका अनाउंसमेंट करूंगा, तब तो YouTube पे छोड़ देना. सागर पिक्चर्स के YouTube पे डाल देना. सागर पिक्चर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी. एंड मैंने क्रिएटिव डाला, YouTube पे डाला, आज 60 मिलियन व्यूज है सर. It became a super hit. First digital blockbuster is 1971 and first lockdown.
Yeah. तो सबकी अपनी कुंडली है Next time. कहाँ पे क्या होगा आई थिंक मनोज की ही फिल्म है एक दिल पे मत लिया जिसकी लाइन है कि वक्त लगता है लेकिन हो जाता है हाँ तो आपके साथ you also took it that way and I think it's very important to take it positively as well because जैसे कि सर ने कहा हालांकि मतलब every individual they have their own ways of dealing with हमारी stress इंडस्ट्री and- पेशेंस देखिए सिखाती है ये 1971 के साथ हुआ ये इनके जमीन के साथ हुआ लेकिन बंदा का ऐसा नहीं होगा जब आएगा तब से रहेगा चालू तब से पड़ेगा लोग जाएंगे देखने हाँ। मुझे पक्का विश्वास है हाँ। कि लोग That's Z5 पे 23 तारीख को हमको पूरा हिंदुस्तान उस दिन जो है 23 तारीख को देखेगा अब ये Z5 के ऊपर है कि वहाँ पे उनका जो है पूरी उनकी स्ट्रीमिंग कमाल हो पूरा इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया स्टोरी का वो दिखेगा सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए हाँ वो वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना ज्यादा लोग आ गए कि सर्वर क्रैश हो गया वो हर अलग बंदा बात। देखेगा हर बंदा देखेगा हर बंदा देखेगा या बट सर विनोद सर मुझे एक चीज बताइए ऑफ लेट इफ आई टॉक अबाउट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव बीन बैकिंग आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड वो सब सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे है मैं जनहित में जारी के बारे में बोलूं कि इसके बारे में बोलूं तो यू नो it's not just about backing films which are socially relevant. The person who is backing it, that person also has to be equally socially relevant. And उनको social awareness उतना ही होना चाहिए because तभी जाके आप समझोगे कि क्या मैं किस चीज़ में मैं funding कर रहा हूँ किस चीज़ में मैं invest कर रहा हूँ अपना time and energy and everything. So when you be a part of these stories, as a creative person as well, आपको कितना aware खुद को रहना पड़ता है in terms of the story because you know there's a team, direction team है, writing team है, वो तो अपना कर लेंगे. लेकिन as a creative producer, as a producer, how important it is for that person to be aware कि क्या चल रहा है. See, I'm a middle class person. जी. ऐसा कोई मेरे पीछे कोई बड़ा सरनेम नहीं है. तो लेकिन अभी बन गया है अभी धोनी के and all. हाँ धोनी का हम लोगों ने वो जिंदगी जी है. सो चाहे वो ट्रेन में सफर करना हो चाहे बस में हो या हर चीज़ की नीचे वहाँ पे रास्ते पे रेकड़ी में खाना हो या मंदिर जाना हो या ये सब किया हुआ है एज ए नॉर्मल पर्सन. सो व्हाट हैपेंस इज उस दौरान पे आपके पास में बहुत सारी ऐसे आप खुद देखते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है या ये स्टोरी आ रही है या ऐसी कोई कहानी है. तो जब कहानी आती है तो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड और आपकी टीम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है. Yes. तो पिछले 27 साल से मैंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में जब से काम किया इतनी सारी फिल्मों पे काम किया है एंड उस दौरान पे यू डेवलप समथिंग दैट आज चाहिए क्या व्हाट इज मिसिंग. सो एंड वी बिलीव दैट यू नो देयर इज अ कॉमन मैन एवरी कॉमन मैन वांट्स टू सी हिज ओन स्टोरी एंड उसमें भी कॉमन मैन की भैया ये हीरो है इसने एक अच्छा काम किया ना इसके ऊपर पिक्चर बनी. वी आर वन ऑफ देम. जी. दे रिलेट टू इट They relate to it. That's how we choose a story, and that's what Banda is. Banda, as Manoj ji said, you know, PC Solanki. But I'm telling you, after seeing Banda and Manoj ji, PC Solanki will also say कि यार हाँ मैं भी कुछ ऐसा करूँ. The other way trend. क्योंकि क्या होता है एक उनको उनके किरदार इन्होंने जिस तरीके से उसको पर्दे पे जब आप फिल्म देखेंगे जी एक लगता ही नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति इतनी करेज होती है कि उसके एक दृढ़ निश्चय पे कि मैं सच का साथ करूंगा. सत्य में जयते जो लाइन है उसको साकार करना है और उसके साथ में वो कहीं भी भिड़ जाता है. इतने बड़े बड़े दिग्गजों को क्योंकि सच के ऐसा नहीं कि ही इज नॉट लाइक कि नहीं ऐसे ही फाइट करना है. देयर हैज टू बी पर्पस टू इट. करेक्ट. और एंड इट डजंट मेक हर दूसरा केस में वो कोई और भी उसी केस में भी उस बड़े वकीलों के साथ में वो जीतेगा. दैट वाज नॉट द थिंग. थिंग वाज दैट ही वांटेड दैट ये केस तो राइट के लिए लड़ रहा हूँ इस बच्ची के राइट के लिए लड़ रहा हूँ मुझे जीतना ही है. एक भी हियरिंग हारी नहीं. एक भी hearing. And he could not afford to lose a single hearing because if he lost, the guy will get bail. If he gets bail, he'll never come back in the system. So You have to keep him in the system. So I think that sums up that you know every common man has a heroism in it. He has to do good जी for the family, for the society, for whatever. And once he reaches, there'll be films, there'll be books. So but sir, you know जैसा कि उन्होंने कहा 25 years you both have known each other. Manoj sir को also you have known for a long time. Family Man, one of his best works ever. हालांकि मैं बेस्ट तो हर कोई प्रोजेक्ट को ही बोलूंगा उनका. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था जब गुलमोहर एंड एवरीथिंग आया था. बट द पॉइंट इज कि हर चीज मुझे बेस्ट ही बोलना होता है उनका. बट द पॉइंट इज कि यू हैव नोन बोथ ऑफ देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू नो काम के वजह से हो या पर्सनल लेवल पे भी हो. When you know people personally as well, kabhi working becomes easier as well, and kabhi because you don't want to, you know, maybe rub them the wrong way because you value their equation, you know, off screen.
आपको वो सब उनके सेंटिमेंट्स वगैरह का भी ख्याल रखना था. How do you have to when you balance know that? someone for this long, Yeah. you can only know them when both of you are honest to each other. So there's no rubbing each other the wrong way. It's more like ये गलत तुमने किया, ये गलत तुमने किया, वो वाली ऑनेस्टी होती है. इट्स नॉट अबाउट आई एम ईगो मसाजिंग देम और दे ईगो मसाजिंग मी. तो उसमें दोस्ती नहीं होती, उसमें रिलेशनशिप नहीं होती. वो 1 साल 2 साल स्वार्थ का, वो स्वार्थ की रिलेशनशिप है, वो दोस्ती नहीं है. और ये हमारी पहली फिल्म नहीं है, इसके बाद में बहुत सारी आप देखेंगे. ऐसे डेफिनेटली होता है. बिकॉज़ सर आपको सर, रहना है, हाँ, आपको वो- काम करना है साथ में. जी. तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा. नहीं तो मैं विनोद जी आके बोला अरे क्या बात है, मैं तो अरे वाह 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 वाह. ये सब तो ये दिख जाता है. हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम लोग देख लेते हैं आंखों में. काम अगर करना है साथ में जी. तो आपको ईमानदार एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा. जी. साफ साफ बोल दिया नहीं भैया वर्क नहीं कर रहा है, इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करो. नहीं हो रहा है. आई थिंक वही मतलब एक कहावत ही है कि मतभेद हो जाए मनभेद नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक क्रिएटिवली अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो वो कुछ ना कुछ इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाता है. लास्ट क्वेश्चन, बंदा के बारे में तो काफी बात कर लिया, आप लोग का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा. मैं जब मनोज सर को अभी मिला, आई टोल्ड हिम कि सर ये जैकेट में आप 20 साल के जवान लड़के जैसे लग रहे हो. आप दोनों एग्री करते हो कि नहीं? वो मान नहीं रहे, पता नहीं क्यों. मैं तो मानता हूँ. देखो आप क्या मान है, रहे? जवानी का राज, कि- खूबसूरती का राज. हमें योग। जवानी से प्रेम है, लेकिन इतना ही प्रेम नहीं है कि मैं इस भोलावे में आ जाऊं. बट नहीं. पर आप एक बात बताओ, जी. जब मनोज सर वॉक जी, करते हैं, जी. यू हैव टू रन. मेरा पर्सनल, And I was- हम लोग शूट पे, हाँ. ही वाज वॉकिंग एंड वी आल्सो, मतलब मॉर्निंग के वॉक Gallery निकलते हैं में, ना, हाँ. तो ही वाज, तो मैं बोला यार ये तो भागना पड़ेगा इनके साथ. And I was taken aback the last time when I met him. I was taken aback with the kind of schedule he has. कि एक टाइम के बाद वो खाना नहीं खाते. The way he kind of Very maintains, I think that is really inspiring. Very सबको disciplined. जानना चाहिए. सादगी की जिंदगी जीते हैं. And he lives like a saint. He lives like a banda. If I can note it on that, end it on हमारे that जो note. सोलंकी साहब हैं, जी. उनका डाइट करने जाऊंगा तो मैं अगली बार में मेरा जो स्टाइलिस्ट वहाँ बैठा हुआ है ना, उसको ढूंढना पड़ेगा साइज. वो सोचेंगे कौन से कपड़े लेके आऊं. बट थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. इट्स अ प्लेजर. आई थिंक जब ये आएगा मूवी, it will really create the kind of impact that it needs to create, because ऐसे stories बाहर आना चाहिए. People should know, people should understand the value of POSCO and कि क्या क्या हो सकता है, ताकि at least crime तो एक होता है awareness create करना, ये देख के कि अगर लोग जो है वो लोग शायद वो पोटेंशियल क्रिमिनल्स, वो लोग अगर उन लोग में भी अगर सुधार आ जाता है, दैट इज आल्सो अ बिग विन बिल्कुल. फॉर यू पीपल. बस उनको बख्शा नहीं जाएगा. बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर सुधार ला सकते हो अपनी जिंदगी में बेस्ड ऑन अगर फियर हो या कुछ भी हो, इट्स स्टिल अ विन फॉर यू ऑल. 23rd में. या 23rd में Z5 पे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन है Z5 का, और आप इसको लेके रखिए और अपने परिवार को और अपने समाज में जितने भी आपके दोस्त हैं उनको दिखाइए. आपको एक बड़ी कमाल की फिल्म देखने को मिलेगी, जो कि हम लेके आ रहे हैं जी. 23rd में Z5. और इतने महंगे आर्टिस्ट के लिए एक छोटा सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हो, है कि नहीं? बंदा हर क्या बंदा आइसक्रीम मत खाना यार, चॉकलेट मत खाना. Z5 पे देख लो, उसके बाद सब अपने आप आ जाएगा. ऑन दैट नोट, Z5 से थोड़ा एक चेक भी आ जाना चाहिए, और इतना सब कुछ बहुत ज्यादा होगा. But guys, thank you so much. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. Once again, we'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much.